Hello students, this is Vinita Singh from St. Xavier School, Nalia. How are you all? I hope you all are fine and staying fit at your home. Today we are going to discuss our question answer of chapter number 1, crop production and management. Before moving to the question answer, let us discuss some word meanings. First one, agricultural practices. It means basically a collection of principles to apply for the farm production processes in order to get a better agriculture to facilitate the farming. ये ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि फार्मर यूज करता है अपनी एग्रीकल्चर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, अपने क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। और इनमें कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सोइंग ऑफ द सीड्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन and protecting from the weeds, harvesting and storage. These are some steps taken by the farmer to facilitate the farming, and it's in all these activities are included in the agricultural practices. Next is animal husbandry. It is a branch of agriculture concerned with the animals that are raised for the meat, fiber, eggs or other products. ये एक एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर क्या होता है, एनिमल्स को रेज मतलब बड़ा किया जाता है जिससे उनको अच्छा मीट, फाइबर, एग्स और अदर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के मिल सके. Crop. A crop is a plant that is cultivated or grown on a large scale. Fertilizers. The chemicals or the substances added to the soil or the land to increase its fertility. Granaries. A granary is a storehouse for the threshed grain and they protect from the pest and the insects. एंड ग्रेनरीज जो होती है ये बड़े लार्ज स्टोर रूम्स टाइप्स होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, सारे जो थ्रेश्ड ग्रेन है जो फ्रेशली हमारे फील्ड से आए हैं उनको किस में पैक किया जाता है, उनके जूट के जो बैग्स होते हैं उनमें पैक कर दिया जाता है और वहां पे स्टोर करके रखा जाता है. मैन्योर. Manure is a decomposed form of the dead plants and animals which is applied to the soil to increase the production. Silos. A silos is a tall, round metal tower on a farm in which grains are stored. Silos जो होते हैं ये metal के बड़े-बड़े tank type होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, grains को store किया जाता है. Winnowing. Winnowing, it is a agricultural method for separating grain from the chaff. Let us move to our exercise questions. It's in time to check your knowledge. The same kind of the plant grown and cultivated on a large scale at a place is called crops. The first step before growing crop is preparation of the soil. Damaged seeds would float on the top of the water. For growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. Match the following Kharif crops: paddy and maize. Rabi crops: wheat, gram, pea. Chemical fertilizers: urea and superphosphate. Organic manure: animal excreta, cow dung, urine and plant waste. Let's come to our question number 1. Give 2 examples of Kharif crop and Rabi crop. So, Kharif crop includes the paddy, maize, soybean, groundnut, cotton, etc. And Rabi crop includes wheat, gram, pea, mustard, etc. Next one, discuss each of the following. Preparation of the soil. So, this is the first point in our agriculture practices. For the good crop, soil preparation is very necessary step, which include the ploughing and leveling. Ploughing of the soil is very necessary for the germination of the seeds and growth of the crop. इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें फील्ड की जितनी भी सॉइल है उसको क्या किया जाता है, प्लाव किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर उसको खोदा जाता है कस्सी की हेल्प से या फिर लेवलर के हिसाब से उसको लेवल किया जाता है, जिससे क्या होता है सॉइल जो है वो लूज हो जाती है, वो एरिएटेड हो जाती है, जिसके अंदर अगर हम लोग कोई भी सीड्स डालते हैं तो वो जर्मिनेशन के लिए
रूट्स जो हैं उनको पेनिट्रेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजिली पेनिट्रेट हो जाएंगे क्योंकि सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा लूज हो चुकी है। क्योंकि काफी समय तक सॉइल अगर ऐसे ही रहती है तो वो बहुत ज्यादा मतलब कंप्रेस्ड हो जाती है बहुत ज्यादा, तो उसको लूज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग उसको लूज करेंगे जिसकी वजह से हमारे जो सीड्स हैं अगर उसमें रूट्स जर्मिनेट होते हैं तो वह इजिली पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट, what is important? Ploughing is important. First point, because to lose the soil help root to penetrate deep into the soil. Soil के अंदर roots को deeply जाने के लिए जरूरी होता है सॉइल का लूज होना। इट हेल्प्स अ प्लांट टू फिक्स स्ट्रांगली, और ये प्लांट को वहां पे सॉइल के अंदर इजिली फिक्स होने में हेल्प करती है। सेकेंड पॉइंट, लूज सॉइल पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस दैट हेल्प्स द रूट टू ब्रीथ इजिली। अब लूज पार्टिकल्स जो होंगे सॉइल के तो उनके अंदर स्पेस भी काफी होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, रूट्स जो है वो इजिली क्या कर सकती है, ब्रीथ कर सकती है। लूज सॉइल मिक्सेस विद द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मोर इजिली, और लूज सॉइल जो होती है आफ्टर प्लाविंग, जो लूज सॉइल है वो बहुत ही इजिली मैन्योर या फर्टिलाइजर जो भी आप उसको प्रोवाइड करते हो फॉर बेटर ग्रोथ, उसके साथ इजिली क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। Loose soil promotes the growth of the useful soil microbes, which helps to add the humus to the soil. सॉइल के अंदर क्या होता है, यूजफुल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल के अंदर जो हमारी हेल्प करते हैं सॉइल को ह्यूमस क्रिएट करने में, तो वो भी बहुत इजीली ग्रोथ कर सकते हैं। लूज सॉइल कैन हैंड होल्ड वाटर फॉर ए लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक वो क्या कर सकते हैं, पानी को होल्ड भी करके रख सकते हैं लूज सॉइल। इट हेल्प्स टू अपरूट वीड्स फ्रॉम द सॉइल इजिली, और अगर सॉइल लूज है तो उसमें क्या होता है, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, तो उनको रिमूव करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत ईजी रहता है हमारे लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्लाविंग के बाद में प्रोसेस आता है लेवलिंग। लेवल करना क्यों जरूरी है, तो इन अ फील्ड स्मॉल मड पीसेस, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा मिट्टी के टीले जो है, मिट्टी के टीले बन जाते हैं, क्रम्स बन जाते हैं, उसके मड पीसेस बन जाते हैं प्लाविंग के बाद में, तो उनको लेवल करना बहुत जरूरी है। और वो लेवल किससे होता है, लेवलर से होता है। ठीक है, इट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, और इट प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम द बीइंग ब्लो अवे इजिली बाय द विंड, और इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल जो कि विंड के थ्रू ब्लो हो जाती है इजिली, तो उसमें भी वो हेल्पफुल रहता है। लेवलिंग जो होती है वो ऑल्सो हेल्प करता है सॉइल का टू टेक द वाटर इजिली। Afterwards, in our this question, second part is sowing of seeds. Sowing is the most important part of the crop production, because अगर हम लोग सीड को सो ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे उसके अंदर आप सोच सकते हो। ठीक है, तो when the soil is ready, the farmer sow the seeds. It is the process of putting the seeds in proper depth in the soil. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Seeds can be sown by seed drill or the manually. Seeds में क्या होता है, सबसे पहले गुड क्वालिटी वाली सीड्स को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग पानी के अंदर सीड्स को डाल देते हैं, और जो सीड्स खराब हो चुके हैं वो क्या होते हैं, ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स मिल जाता है, और उस गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को हम लोग को डेप्थ ऑफ द सॉइल में डालना होता है। एटलीस्ट सॉइल का ऊपर 2 to 3 टाइम्स उसका सॉइल ऊपर गिरनी चाहिए। ठीक है, और सीड्स को सो किया जा सकता है सीड ड्रिल की हेल्प से, या फिर मैनुअली आप हैंड से भी उसको सीड को सोइंग कर सकते हो। सोइंग प्रोसेस। वीड इज एनी प्लांट दैट ग्रोज वाइल्ड एंड फोर्सफुली, जो कि अनवांटेड है, अपने आप ग्रो हो जाती है हमारी क्रॉप के साथ, एंड स्पेशली अमंग द कल्टिवेटेड प्लांट्स, एंड weeds are the unwanted plants, and these unwanted plants compete with the main crop plants for nutrients and the space. For example, amaranthus, चौलाई जो होती है, चिनोपोडियम, बथुआ, ठीक है, द मेन क्रॉप प्लांट्स, इनमें क्या होता है, ये मेन क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, चौलाई, बथुआ जो है, और ये weeds क्या करते हैं, ये
मतलब compete करते हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ और उसके न्यूट्रिएंट्स और स्पेस के साथ, तो फिर क्या होता है हमारे जो मेन प्लांट्स होते हैं उनको इतना स्पेस नहीं मिल पाता है ग्रोथ के लिए और उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर्ली नहीं मिल पाते हैं. इसीलिए वीड्स कैन बी रिमूव बाय यूजिंग वीडिसाइड्स. आप वीडिसाइड्स यूज कर सकते हो जिससे उनका बीज जो है वो आगे बढ़ेगा नहीं. एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. और वीड्स को जब रिमूव किया जाता है फील्ड से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग. थ्रेशिंग. आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई. हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग इज डन. थ्रेशिंग किया जाता है जिस प्रोसेस में क्या होता है, loosening the seeds from the husk and straw. In older time, this was done by beating the grains with the stick or some other objects. Okay, and now on these days, it's done by the thresher. Explain how fertilizers are different from the manure. So, fertilizer is an inorganic salt and it is prepared in the factories and it does not provide any humus to the soil. And fertilizers are very rich in the plant nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium, whereas manure is a natural substance and it's mainly obtained by the decomposition of the cattle dung, human waste, and plant residues. Manure can be prepared in the field, and manure provides lots of humus to the soil. Manure is relatively less rich in the plant nutrients compared to fertilizers. Next question is, what is irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve the water. So the process of supplying water to the crop plants in the field is called irrigation, and irrigation requirement of the crop depend upon the nature of the crop and nature of the soil and the season. Sources of the irrigation are river, canals, well, tube wells, dams, ponds, and lakes. Two methods of irrigation which conserve the water are sprinkler system and the drip system, and these two are our modern methods of irrigation. Sprinkler system, this system consists of the perpendicular pipe which have a rotating nozzle on the top. आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर खेतों में यही रहता है. इसमें परपेंडिकुलरली क्या होती है, पाइप्स अटैच रहते हैं और इसके ऊपर नोजल लगी रहती है ऊपर की तरफ. एंड दीज पाइप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, और इन्हीं पाइप को किसमें, जैसे कि डायग्राम में है, मेन पाइप जो मोटर की पाइप होती है उससे अटैच कर दिया जाता है. एंड वाटर इन दीज पाइपलाइन flows at a high pressure and get sprinkle on the crops. इन सभी पाइप में हाई प्रेशर से क्या होता है, वाटर फ्लो होता है, लेकिन ये जो ऊपर नोजल लगी है वो क्या करती है, स्प्रिंकल करती है पूरी क्रॉप के ऊपर. और ये जो मेथड होता है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कहाँ पे, सैंडी सॉइल जहाँ पे पाई जाती है वहां के लिए. ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द पोजीशन ऑफ द रूट्स. रूट्स जहां पे है सिर्फ वहीं पे उसका पानी जाता है. छोटे छोटे इसके अंदर छेद होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप क्या होता है, पानी गिरता रहता है, रूट्स तक पहुंचता रहता है. एंड दिस इज अ बेस्ट टेक्निक टू द वाटर प्लांट एज इट प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ द वाटर. इससे पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा प्रिवेंट हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what would happen if wheat is sown in the kharif season? Discuss it. So आपको पता ही है कि wheat जो है वो रबी क्रॉप है. अगर उसको खरीफ सीजन में गाएंगे तो उसको जो उसकी सिचुएशंस हैं, उसकी जो कंडीशंस है वो उसको नहीं मिलेंगी. So wheat is a rabi crop grown in the winter season. Hence it required the cold climatic conditions. इसकी जो climatic conditions हैं वो cold है. और अगर खरीफ क्रॉप में डालेंगे तो उसमें तो उसको climatic conditions तो पूरी warm मिलेंगी उसको. So it's not be grown properly. It does not require too much water for its growth. So if wheat is sown in the kharif season, the crop may wilt as it cannot tolerate excess water, or therefore wheat should not be sown in the kharif season. Okay. Explain how soil get affected by the continuous plantation of the crop in a field. अगर कंटिन्यूसली प्लांटेशन किया जाता है एक ही फील्ड में, एक ही क्रॉप को बार बार उगाया जाता है, तो इससे सॉइल पे क्या फर्क पड़ता है. So, if continuously plantation of crop is done in the field, then the soil will become poor in necessary nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, etc. अगर उसके अंदर continuously एक ही क्रॉप बार बार आ रही है तो क्या होगा, हमारे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम्स, तो ये उसमें ग्रोथ नहीं हो मतलब उनकी नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी. प्लांट्स जो है require nutrients for their proper growth and functioning. So when a farmer continues to grow crop one after the other, then all nutrients available in the soil reduce and the crop will decrease automatically. ठीक है? What are weeds? How can we control them? Weed is any plant that grows wild and forcefully, especially among the cultivated plants. And weeds are unwanted plants, and these unwanted plants compete with the main crop plants for nutrients and space. Weeds can be removed by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of a plough, and weeds can be removed by using weedicides. The process of removing the weeds from the crop field is called weeding. 10th question, arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of the sugarcane crop production. So here आपको कुछ दिए हुए हैं, steps दिए हुए हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के, कि एक सुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे, उसका आपको फ्लो चार्ट बनाना है, इसको अरेंज करना है. तो आपको सबको पता है सबसे पहला हम लोग कौन सा काम करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, उसके बाद सोइंग, थर्ड मैन्योर, irrigation, plowing or weeding, harvesting, and then sending crop to the sugarcane factory. Okay, that's all in your this chapter. I completed all the keywords and your question answers. Please make notes and solve all the question answers and write question answer in your notebook. Thank you so much. If you like my video, please share and subscribe my channel, Vinita Shekhawat. Thank you.